Okay, especially in case of the part C questions, what I have seen that the questions are very long, but most of the part it is just a story. The actual question is only there in 1 or 2 lines, ठीक है? So don't get confused with whole of the story. जो एक दो line है उसी से you focus on that and then search for the answer, and you will see that it is very, I mean, if you have some background, you can easily strike out at least 2 options, ठीक है? Then you are confused between the 2. ऐसे ही होता है ना, 2 तो easily हटा देते हैं, 2 के बीच में confusing होता है, बाकी तो तुमको confuse करने के लिए they have different options. So focus only the important lines which are there in the question. बाकी वो जैसे bulb C mice और ये वो bulb C mice होने था या वो NSW NOD mice होता है, जैसे इसमें question था ना bulb C, so it has got nothing to do with the bulb C. The main role is of the interferon gamma or the interleukin 10, ठीक है? वो NZW होता है, न्यूजीलैंड होता है, या NOD माइस होता है, कोई भी माइस होता है, सेम रहता है. पर हम लोग क्या सोचते हैं bulb C है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसका कुछ रोल है क्या? तो मोस्टली जो ऐसे सोचते हैं ना कि bulb C माइस से उसका कुछ है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है. वो बाकी की स्टोरी सब ऐसे ही है. आंसर जो होता है इट इज रिलेटेड टू जस्ट 1 or 2 लाइन्स इन द होल ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलो, और इसमें तुमने देखा होगा एज आई हैव सेड अर्लियर कि अभी जो हमने टॉक दिया था, सम ऑफ द आंसर्स वर ऑलरेडी देयर इन माय टॉक. इनफैक्ट जो अभी हमने तुमको सेल साइकिल का डायग्राम दिखाया था, तो यू कैन सी आई हैव टेकन दैट डायग्राम फ्रॉम द कार्ड एंड द सेम डायग्राम हैज बीन यूज्ड बाय द एग्जामिनर फॉर द नेट एग्जामिनेशन. तो कई बार वो भी डायरेक्टली वैसे के वैसे ही उठा लेते हैं. Question number 1. So this is the right answer. Matlab this is not the related to the hypersensitivity type 1, which is the immediate hypersensitivity reaction. Granulomatous reaction, it is formed in case of the DTH, delayed type hypersensitivity reaction. उसमें क्या होता है कि बीच में infected macrophages होते हैं. They are surrounded by the small lymphocytes and the whole of the structure is called as the granuloma, and that is formed to contain the infection within the macrophages. Then CD19 is a marker for B cells. You know that different types of the cluster of differentiation are there, and why they are there? So that we can differentiate between different type of the cell types, okay? And this differentiation can be used, how can we differentiate between these between different cell types using these markers? By using the fluorescent antibodies, yeah, by using the FACS, etc. And CD19 is what? It is specific for the B cell, and actually it associates with the B cell receptor, ठीक है? BCR पढ़ा होगा, B cell receptor, उसमें CD19 it is one of the component. Then part of B cell co-receptor, it is part of B cell co-receptor with CD21 and CD81, and it is a critical signal transduction molecule that assembles with the BCR and regulates B cell development, activation and differentiation. And any given cell at different point of time, उसका चाहे वो maturation phase हो, activation phase हो, they express specific CD molecules. और जैसे T cell के केस में you know that CD8 plus cells are there, then CD4 plus cells are there. Which of the following matches of oncogene protein is not correct? And this is the phosphplatelet derived growth factor. ये सब तुमको देखा है. ERB है क्या? It is thyroid hormone receptor है. ERB epidermal growth factor receptor है. RAS GTP जो भी हमने बताया उसका ये signal transduction molecule and FOS. और ये जितने भी है ERBA, ERBB, RAS, FOS, they all are proto-oncogene. जैसा भी हमने तुमको classification दिखाया था, तो they all are proto-oncogene and they have role in the cell growth and differentiation. And overexpression of any of these genes, it leads to the progression, development of the cancer. And FOS or CFOS, cellular FOS, it is a proto-oncogene and it is a transcription factor. Now, which of the following biochemical reaction is most commonly utilized by living cells to propagate intracellular signals? That is the phosphorylation. और methylation किसके लिए होता है? Shutting down. नहीं, पर किस लिए होता है? किस टाइप का सिग्नल? For gene silencing. पढ़ते हैं ना हम लोग epigenetics और inactivation. जैसे methylation उसका हम लोग X-link पढ़ते हैं.
और हिस्टोन मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन ये तो एसाइलेशन है, और दीज थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। और हिस्टोन का जब एसिटाइलेशन होता है इट इज इन द what euchromatin state, when histones are methylated they are in the heterochromatin. Identify the correct order in which the extracellular signals are transmitted, that is the adenylate cyclase CMP protein kinase. अभी हमने डायग्राम दिखाया था GPCR का, ठीक है। तो GPCR का जब एक्टिवेशन हो जाता है तो सबसे पहले क्या एडेनाइलेट साइक्लेज है, उससे क्या CMP प्रोड्यूस होता है, एंड देन इट ब्रिंग्स अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए क्यों है? बिकॉज इट इज CMP AMP डिपेंडेंट। Which of the following is involved in the cell signaling process? ये नहीं है, ये नहीं है। जिंक फिंगर्स क्या होते हैं? दे आर DNA बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट विद द एक्टिवेटर्स और द रिप्रेसर्स, ठीक है। साइटोक्रोम 450 क्या है? इट बिलोंग्स टू द सुपर फैमिली ऑफ प्रोटीन्स कंटेनिंग अ हीम कोफैक्टर एंड देयरफॉर आर hemoproteins. They are terminal oxidase enzymes in the electron transfer chains. So the correct answer here is protein kinase C. A pathogen like Mycobacterium which colonizes inside the cells of the host is likely to be least affected by which one of the following host immune defense mechanism? Cell mediated immune response और ये ठीक है। ये क्या करता है? माइकोबैक्टीरियम मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन के अगेंस्ट मोस्ट इफेक्टिव होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है या मैक्रोफाजेस है। और माइक्रोबैक्टीरियम क्या होता है? इट रिसाइड्स इनसाइड दी मैक्रोफाजेस, और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ये क्या करता है? इट डज नॉट अलाउ द फ्यूजन ऑफ द फैगोलाइसोसोम। फैगोसोम बना फिर वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है। लाइसोसोम की पीएच एसिडिक होती है, उसमें लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, दे एक्ट ऑन द पैथोजन और उसको डिग्रेड करता है। पर माइक्रोबैक्टीरियम उसको प्रिवेंट करता है, उसको फ्यूजन नहीं होने देता, एंड देयरफॉर इट सर्वाइव्स इनसाइड द सेल, एंड सिंस इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द इम्यून सिस्टम, इसलिए। और जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है इट इज ओनली अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजेंस, एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ द it will be least affected by the humoral immune response. CMI, it is T cell mediated CD4, and they are mainly responsible for, जैसे हमने कहा, जो bacterial infections especially intracellular, they are mainly cleared by the CMI. और इस केस में mycobacterium infection is mainly cleared by the CD4 plus T cells. Then क्योंकि ये T cells क्या करते हैं? They secrete the interferon gamma which activates the macrophages. मैक्रोफाजेस पे इसको एनगल्फ करते हैं। ओके, नाउ वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द ये रिस्क होगा, ठीक है। अभी सबने RNA पढ़ा, ये RNA इंटरफेरेंस है, और इसमें RNA तुमने पढ़ा होगा, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, और दूसरा क्या होता है? हाँ, माइक्रो RNA, तो तीसरा स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, माइक्रो RNA एंड शॉर्ट RNA, ठीक है। स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA तो क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलरली उसको इंजेक्ट करते हैं, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA, और डबल स्टैंडर्ड इज देन क्लीव बाय द डाइसर एंजाइम, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, फिर उनका सेपरेशन होता है, और जो देन दे आर लोडेड ऑन टू द रिस्क, और रिस्क में फिर जो सिर्फ सेंस RNA है जिसको हम लोग कहते हैं गाइड RNA, दैट बाइंड्स टू द रिस्क। और जो रिस्क कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 प्रोटीन्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA लोडिंग प्रोटीन एग्रोनॉट और RNA मॉलिक्यूल खुद, ठीक है। और जो एग्रोनॉट है इट हैज गॉट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो जब ये गाइड RNA व्हेन इट विल गो एंड बाइंड टू द mRNA तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA बनेगा फिर से। तो जो एग्रोनॉट है बाय इट्स एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इट विल ब्रिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द mRNA, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं जीन साइलेंसिंग होती है। शॉर्ट RNAs क्या है? शॉर्ट RNAs भी ऐसा ही RNA तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक mRNAs ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट RNAs है, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा इन द न्यूक्लियस, इसको भी जो RNA मतलब इसकी जो जीन्स है इट इज ट्रांसफेक्टेड थ्रू द वायरल वेक्टर ओनली, बट हियर द DNA विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोम, और इट विल प्रोवाइड मोर लॉन्ग लास्टिंग साइलेंसिंग ऑफ द जीन, क्योंकि उसका जब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो RNA बनेगा। उसको शॉर्ट RNA इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हेयरपिन लूप होता है, और ये जो लूप स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड्स द सिग्नल टू द डाइसर कि इट इज अ डबल स्टैंडर्ड RNA।
ठीक है, और फिर डाइसर उस पर एक्ट करता है, देन रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम, दैट इज थ्रू द रिस्क द डिग्रेडेशन विल बी देयर। माइक्रो आरएनए में क्या होता है? माइक्रो आरएनए में, हाँ एक्चुअली जस्ट तुम्हारे उसका नहीं, हम तो तुम्हारे क्रैश कोर्स है इसलिए जो रिलेटेड है वो हम बता दे रहे हैं। माइक्रो आरएनए में भी क्या होता है? हाँ, ड्रोशा एंड पाशा। डाइसर तो ये वाले में होता है, ठीक है, वो थोड़े अलग होते हैं, वो दैट इज कैरेक्टराइज बाय द स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर। उसमें जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है उसमें स्टेम स्ट्रक्चर होता है, लूप स्ट्रक्चर होता है, और जो एंजाइम्स उसको क्लीव करते हैं दैट इज ड्रोशा एंड पाशा, और उसका भी एम क्या है? साइलेंसिंग, हाँ, ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। ये वही अभी हमने जो दिखाया, अभी जो हमने बोला वही है। और इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा, मतलब हम लोग जब तीनों के आरएनए की बात करते हैं कि एग्जैक्ट पेयरिंग शुड बी देयर विद द एमआरएनए, इवन इफ द एग्जैक्ट पेयरिंग इज नॉट देयर, क्या होगा? इट विल नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम, तो भी जो ट्रांसलेशन है वो आगे नहीं हो सकता है। हाँ, ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या क्या है? डाइसर है, टीआरबीपी है, और टीआरबीपी यानी क्या? ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लोडिंग प्रोटीन है वो है, बाइंडिंग प्रोटीन है, एंड दिस इज द एर्गोनॉट, एंड दिस एर्गोनॉट इज द प्रोटीन which has got the endonuclease activity which will finally cleave the mRNA. Among the following antigens specific to a pathogen, which one is most likely to be ineligible as a vaccine with long lasting protective effect? तो जैसे इसमें क्या होगा? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अभी शुरू में ही हमने कहा कि सबसे इफेक्टिव कौन होते हैं? विच आर प्रोटीन, या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है तो अलग बात है, बट इफ इट इज फैटी एसिड ओनली, लिपिड है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, तो दे आर पुअर एंटीजन एंड देयरफॉर दे कैन नॉट जनरेट द मेमोरी। A tumor suppressor protein is one whose function brings about regression of tumor. उसका ऊपर का क्वेश्चन शायद हमने कहीं फॉर्मेटिंग में लगता क्वेश्चन रह गया ना। हाँ, a tumor suppressor protein, okay, this is the question. A tumor suppressor protein is what? Is one whose function brings about regression of tumor, is one where mutations are shown to cause or are associated with tumors, is inactivated by oncogenes, inhibits the progression of cell cycle by phosphorylating cyclin. So this is the correct answer. क्योंकि जैसा हमने इसमें कहा कि ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, इसमें यदि पहली बार रिग्रेशन ऑफ ट्यूमर यानी क्या? कि पहले ट्यूमर डेवलप हुआ, अब उसको रिग्रेस करना, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर का रोल क्या है? इट विल नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर जब भी बनता है तो उसमें दो स्टेज होती है, इनिशिएशन होता है, दूसरा होता है प्रमोशन, ठीक है। इनिशिएटर अलग होते हैं, प्रमोटर्स अलग होते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर का क्या है? इज वन हुज म्यूटेशंस आर शोन टू कॉज और एसोसिएटेड विद ट्यूमर। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नहीं है कि ब्रिंग्स अबाउट द रिग्रेशन ऑफ ट्यूमर। रिग्रेशन का मतलब क्या है? कि पहले तो ट्यूमर डेवलप हुआ और फिर उसको वो रिग्रेस कर रहा है। Okay, so this is the simple answer, Candida. It is an opportunistic organism which is present on our body and under the special conditions, immunocompromised conditions, ऐसे कुछ में होगा, it acts as the pathogen. This is the triacyl glycerol. अभी ये तीनों के तुमको हमने रोल बताया, inositol triphosphate, so this is the right answer. Now the receptor for this is the transcription factor. This is the right answer. यहाँ हमने explanation दिया हुआ है। In meiosis, the application of DNA occurs at meiosis 1. ठीक है, meiosis 2 में नहीं है, between meiosis 1 and 2 भी नहीं है, and in both meiosis 1 and 2 भी नहीं है। If haploid number of chromosomes in human is 23 and the amount of nuclear DNA is sperm is 1C. अब यहाँ जो 1C लिखा है वो सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर ह्यूमन सेल हैज इन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज ऑफ मेयोसिस रेस्पेक्टिवली? टायरोसिन। टायरोसिन के अलावा जो दूसरे अमीनो एसिड्स हैं विच आर फॉस्फोराइलेटेड बाय द प्रोटीन काइनेज, दे आर सीरिन एंड द थ्रियोनिन, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोटीन काइनेसेस हैं, टायरोसिन प्रोटीन काइनेसेस and serine and threonine.
वैसे हम लोग कहते हैं जो सेरिन और थ्रेओनिन काइनेसेस हैं दे आर मोर एबंडेंट एज कम्पेयर टू दी टायरोसिन, पर जो प्लांट्स हैं उसमें सेरिन थ्रेओनिन काइनेसेस ज़्यादा फंक्शनल होते हैं और मैमल्स में टायरोसिन काइनेसेस। तो मतलब यहाँ 3 जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें से द राइट आंसर इज टायरोसिन। अदरवाइज काइनेस एक्टिविटी के टारगेट सेरिन और थ्रेओनिन भी होता है। नाउ व्हाट रेट्रोवायरसेस? रेट्रोवायरसेस इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसड्यूस म्यूटेंट्स वर्जन्स ऑफ द सेलुलर। ये जैसा भी हमने बताया कि जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो पहले हम लोगों की जो जीन्स होती है बॉडी की दे आर टेकन अप बाय द वायरसेस एंड देन दे ट्रांसफर इट, और जब उसका जहाँ भी वो ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन और म्यूटेशन द प्रोटोऑन्कोजीन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द वायरल ऑन्कोजीन। ये सारे ये जीन्स हैं और ये आगे उनके फंक्शंस हैं एंड दिस इज द मिसमैच। रो एंड रैट, रो और रैट भी क्या, ये सब रैट्स फैमिली के मेंबर्स हैं, रो एंड रैट। प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, दिस इज दी नॉट ट्रू, ठीक है। प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन प्राइमरीली डिस्ट्रॉयज मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। अब तुम लोग सबको पता है कि साइकिल क्या होती है मलेरिया की, जब एनोफिलिस मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो है व्हेन इट टेक्स ब्लड मील इट इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स ब्लड में आते हैं और फिर दे आर कोटेड विद द सर्कम स्पोरोजॉइड एंटीजन। तो जो हम लोग वैक्सीन की बात करते हैं तो जो वैक्सीन है इट इज टारगेटेड अगेंस्ट दीज एंटीजन, और जो स्पोरोजॉइड्स हैं दे रिमेन इन द ब्लड सर्कुलेशन फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बिकॉज उसके बाद वो क्या हो जाते हैं दे अटैचेस टू द हिपेटोसाइट्स और उनकी इंट्रासेलुलर स्टेज स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे वो मीरोजॉइड बनाते हैं। मीरोजॉइड से पहले उनकी स्टेज वो कौन सी होती है? हाँ, प्री इरेथ्रो एक्स्ट्रा, हाँ जिस जो इरेथ्रोसाइट में एंटर करते हैं वो है, और एक्स्ट्रा हिपेटिक कहते हैं उसको। तो वो इरेथ्रोसाइट के अंदर भी जाते हैं, जब इरेथ्रोसाइट को वो ब्रेक करते हैं देन द एक्चुअल सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया आर सीन, दैट इज द फीवर एंड द चिल एक्सेट्रा। तो मीरोजॉइड स्टेज है, फिर मीरोजॉइड के बाद क्या होगा, सम ऑफ देम दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हिच may be ingested by the female anopheles. Then in the gut of the female anopheles they fuse to form the zygote, और फिर ये डिवाइड होकर बनाएगा स्पोरोजॉइड, और फिर से जब एनोफिलीज when it will have the blood meal these sporozoids they will be injected into the human body. So all these three are correct, this is the incorrect answer. ये अभी यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं डाला जो उसमें है, तो जैसा भी हम तुमको उस समय हमने बताया कि यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट हेयरपिन आरएनए अगेंस्ट द साइक्लिन डी, ठीक है। तो साइक्लिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द CDK1, CDK4/6 एंड देन दी CDK4/6 दे एक्ट ऑन द RB, और RB फिर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द expression or for the production of the proteins which are involved in the replication or in the synthesis of the cyclin E और CDK1. तो यदि cyclin D inactive है तो further जो cycles हैं वो नहीं होगी, इसलिए वो straight line है। Okay, the following statements have been proposed for a cancer. Binding of p53 with this, सबसे पहले p53 क्या है, इट इज ऑल्सो अ प्रोटोऑन्कोजीन, और इसका रोल p53 का कहाँ पर होता है कि जहाँ कहीं भी सेल साइकिल में कब whenever there is some DNA damage because of UV रेडिएशन या किसी भी के कारण से डैमेज होता है, then this p53 it is involved in the repairing of that DNA damage, और वो क्या करता है, मतलब रिपेयरिंग यानी वो सेल साइकिल को रोक देता है सो दैट द डैमेज DNA विल नॉट बी प्रोपागेटेड। पर जब वो MD/M2 के साथ कॉम्प्लेक्स कर लेगा तो उसकी ये जो एक्टिविटी है वो दैट विल बी सप्रेस्ड। Activation of p53 protein protects the organism against the propagation of cells that carry damaged DNA with potentially oncogenic mutations. MD/M2 p50 specific A is the principal cellular antagonist of p53, acting to limit the p53 growth suppressive function in unstressed cells. तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है, when it binds with this
then it is a precondition, because then it predisposes the person to the development of the cancer. Then dimerization of Cmax leads to the enhanced cell protein max. It is also known as the MYC associated factor X. It is a protein that in humans is encoded by the MAX gene. ठीक है? CMYC भी क्या है? It is again a proto-oncogene. And MAX proteins, they dimerize and bind DNA through basic helix loop. ये सब तुमको पता है, ये DNA binding domain होता है, leucine zipper होता है, helix loop, helix structure होता है. MAX lack transactivation domain, but MYC has a transactivation domain. MAX interacts with the self and with MYC to leucine zipper. Phosphorylation of CSRC leads to the downregulation of its activity, high activity associated with the cancer progression. तो ये दोनों जो आंसर्स हैं, they are correct. That is, they predisposes to the development of the cancer. जैसे इसमें इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, when the activation of the macrophage is there, then the killing of the pathogen is through the production of the ROS and the RNS, that is the reactive oxygen species and reactive nitrogen species. और ये इसलिए सिग्नल कैसे मिलता है? By the binding of the interferon gamma to the receptor, और जो रिसेप्टर का एक्टिवेशन है that is through the JAK-STAT pathway. तो ये सारी तो इसमें कहानी दी हुई है. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मैक्रोफाजेस रेस्पॉन्ड, इसका सही जो आंसर है वो ये है बी. मैक्रोफाजेस रेस्पॉन्ड टू इट, क्योंकि ये सारे जो हैं इट इज़ ए पोटेंट NIOS इनिबिटर. INOS यानी इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, सिंथेस इनिबिटर. तो यदि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को इनिबिट कर रहा है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं बनेगी. NADPH जो ऑक्सीडेज है उसका भी रोल है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. जो आर्जिनिन है एनालॉग, ये जो है it has been shown that the deprivation of the arginine it leads to the decrease in the क्या है यहाँ पे, हाँ, it leads to the decrease in the response. इसलिए ये जो तीनों हैं they result in the decrease in the response. तो इसलिए सिर्फ जो इंटरफेरॉन गामा है that is the right answer and this is the right answer. कि सबसे कम जो पैरासाइट लोड होगा वो इस केस में होगा. Deprivation of L-arginine impairs लेशमानिया मेजर स्पेसिफिक T cell responses. ठीक है, इसलिए आर्जिनिन के केस में भी the response will be less. This correct answer is receptor decoy activity. Fast ligand is a type 2 transmembrane protein that belongs to 2NF family. Its binding with its receptor induces apoptosis. Fast ligand receptor interactions play an important role in the regulation of immune system. इसमें क्या है कि fast and fast ligand is to mediate elimination of by A. Half the tumors were found to be amplified and overexpress the gene for a secreted protein that binds to the fast ligand. The main reason for survival of these tumors by the secreted fast ligand binding protein may be attributed to its receptor decoy activity. क्योंकि जो ligand है उसको आके protein bind कर रहा है and therefore fast ligand is not able to bind to the actual fast receptor. तो यहाँ पे right answer है receptor decoy activity. Immunodeficiency. Immunodeficiency क्या है कि when the person is deficient in some of the component of the immunity, it can be the components of the adaptive immunity or the innate immunity. It can be B cell deficiency, T cell deficiency, deficiency in the complement और the macrophage activation. जब B और T दोनों सेल्स का डिफिशियंसी होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID. ठीक है, so this is the example of the SCID. Which of the following is considered to be the combined B and T cell deficiency? Swiss type A gamma globulinemia. This is the first time of the SCID which was discovered. और इसमें अदरवाइज जहाँ हम लोग A gamma globulinemia कहते हैं that is only the low expression of the antibody, या जो B cell B lymphocytes हैं उनसे एंटीबॉडी का कम होना, जैसे बुर्किट लिम्फोमा एक्सेट्रा. ठीक है, तब हम लोग कहते हैं एक्स लिंक ए गामा ग्लोब्यूलिनेमिया. पर जो स्विस वाला है इसमें एक्चुअली टी और बी सेल
दोनों की डिफिशियंसी एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्किड। और जैसे ये एटेक्सिया, टीलैंग लैक्टेसिया, इसमें क्या होता है कि जब हम लोगों के जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है दैट इज इम्पेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे कहीं से दिया है। देन विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम, इसमें स्पेसिफिक डिफेक्ट है, इट इज इन द साइटोस्केलेटल प्रोटीन and it results impaired function, defective T cells and the platelet cells. Behr lymphocyte syndrome, defect in class 2 MHC gene promoter, no class 2 MHC molecules are produced. And the class 2 MHC molecules expression, it is necessary for the development of the B cell. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने पढ़ाई है, ठीक है, और उसका हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंड व्हाई दिस सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्यूज्ड ट्यूमर सेल्स, फ्यूज्ड बी लिम्फोसाइट्स एंड हाइब्रिड बिटवीन द बी लिम्फोसाइट एंड द माइलोमा सेल्स। जो बी फ्यूजन प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको वी डोंट नीड टू सिलेक्ट देम बिकॉज दे विल डाई आफ्टर सम टाइम, बिकॉज वी नो दैट द बी सेल्स दे हैव फिक्स्ड और द शॉर्ट लाइफ स्पैन। पर जो माइलोमा होंगे वो क्या होंगे, हाँ, दे कैन कीप ऑन ग्रोइंग, पर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, बट वी हैव टू रिमूव देम फ्रॉम द मीडियम, एंड फॉर दैट द हेड सिलेक्शन इज यूज्ड। द फुल फॉर्म इज हाइपोजेंटिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडिन। और जो अमीनोप्टेरिन इसमें होता है, इट इज एन एंटीबायोटिक दैट ब्लॉक्स द टेट्राहाइड्रोफोलेट which is responsible for the transfer of the single carbon in the nucleotide synthesis by the de novo pathway. अभी यहाँ पर जैसे हमने तुम लोग को बताया कि सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन कैसे, पहले एडिनाइलेट साइक्लेज है, फिर सीएमपी, फिर प्रोटीन काइनेज है। तो यदि तुमने काइनेज को स्टॉप कर दिया उसका ट्रांसक्रिप्शन, एंड इफ यू आर एडिंग द सीएमपी, तो सीएमपी तो इट अपीयर्स बिफोर द काइनेज, नॉट आफ्टर द काइनेज, इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। इसमें भी क्या होगा, सबको पता है कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन डेफिशिएंट यानी क्या हुआ, नाउ इट कैन नॉट एक्ट, we have 3 professional antigen presenting cell, B lymphocyte, dendritic cells and macrophages. They present antigen to the T helper cells, ठीक है, और जो class 1 MHC molecules हैं, they are present on all the nucleated cells, और जो class 1 molecules हैं, they activate the CD8 plus T cells, ठीक है। तो लास्ट 2 ऑप्शंस तो वैसे रूल आउट हो जाते हैं बिकॉज दे आर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद द MHC मॉलिक्यूल, उसकी जो अल्फा चेन उसका एसोसिएट है, और यदि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन उसका एसोसिएट नहीं होगा, द एक्सप्रेशन ऑफ द क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस विल नॉट बी देयर। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस तो वैसे ही हट गए। इंटरल्यूकिन 10 का रोल क्या होता है कि इट सप्रेसेस, इट इज सिक्रेटेड बाय TH2 सब पॉपुलेशन एंड इट सप्रेसेस द एक्सपेंशन ऑफ द TH1 सेल पॉपुलेशन, मतलब उसका फंक्शन अलग है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ द CD8 प्लस सेल। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इंटरफेरॉन गामा। ये यहाँ पे हमने कुछ इंटरल्यूकिन्स और उनके रोल की वो टेबल डाली हुई है। हाँ, अभी शुरू में ही हमने तुमसे कहा था कि फॉर ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ इम्यूनोजन द साइज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इफ इट इज नॉट ऑफ पर्टिकुलर साइज, मिनिमम साइज, then it is not recognized by the immune system. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्योंकि लिखा की टू 8 अमीनो एसिड्स। जब हम लोग क्लास 1 की बात करते हैं तो एटलीस्ट 8 to 10 अमीनो एसिड्स, मिनिमम 8 to 10, ठीक है, और क्लास 2 में 13 to 14 अमीनो एसिड लॉन्ग होना चाहिए। तो स्मॉल पेप्टाइड है एंड देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। और जब हम लोग इसको किसी कैरियर से लिंक कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये हेप्टेन, ठीक है। तो एक्चुअली दिस आंसर इज रिलेटेड टू दी हेप्टेन, कि यदि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है बाय इटसेल्फ इट इज नॉट एंटीजेनिक बिकॉज ऑफ इट्स साइज, देन वी कैन मेक इट एंटीजेनिक बाय लिंकिंग इट टू सम न्यूट्रल कैरियर मॉलिक्यूल, और इसको पूरे को हम लोग कहते हैं हेप्टेन। जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी वी कैन लिंक टू सम कैरियर मॉलिक्यूल, एंड देन दीज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे एक्ट एज द एपिटोप्स and they become immunogen. तो यहाँ पे peptide specific were not generated as they were not coupled to a protein carrier.
हाँ, बट तब भी वहाँ पे ये स्मॉल साइज के कारण नहीं होगा, ठीक है। एडजुवेंट हम लोग तब यूज़ करते हैं व्हेन इट हैज़ गॉट पुअर एंटीजेनेसिटी, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग कह रहे हैं कि कोई कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया हम लोगों ने या कोई वीक एंटीजन है, तो एडजुवेंट से हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड करके, तो वो स्लो उसको रिलीज़ करता है, ठीक है ना। और सिक्वेस्टर करता है एंटीजन को, सो स्लोली रिलीज़ करता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे साइज में वो हेल्प नहीं करता है, पर यदि उसकी एंटीजेनेसिटी वैसे लो है तो देन इट कैन बी यूज्ड अलोंग विद द एडजुवेंट्स। अब जैसे इसमें भी ये सारा इतना लिखा हुआ है, पर सबसे पहले क्या है कि इसमें हमने एक्चुअली देखा कि दो क्वेश्चन दो अलग अलग ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि ये पूरा है और नीचे बस जो ऑप्शन है वो अलग दिए हुए हैं। एक उसमें दोनों में क्या है कि व्हेन द माइटोटिक सेल्स आर अपियरिंग, और हम लोग को कैसे पता चलता है सेल्स माइटोटिक सेल्स आर देयर, मतलब हम लोग वी कैन कैलकुलेट द माइटोटिक इंडेक्स, ठीक है। माइटोटिक इंडेक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। बट हाउ डू यू नो कि माइटोटिक सेल्स कितनी है, कैसे पता करेंगे? हाँ, फैक्स से तो सरफेस के है ना, फैक्स नहीं, उससे भी इजी मेथड है। बताओ यदि तुमको पता चलना है करना है कि तुम्हारे पास जो सेल पॉपुलेशन है उनमें से हाउ मेनी सेल्स आर अंडरगोइंग माइटोसिस। नहीं, हम लोग सिंपल देखते हैं उसको स्कैनिंग करके माइक्रोस्कोप में, क्योंकि माइटोसिस तो इस साइड सबसे अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाती है, ठीक है। तो इस तरह से माइटोटिक सेल्स को माइक्रोस्कोपिकली काउंट करते हैं कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द माइटोसिस, एंड इट कैन बी एनी स्टेज ऑफ द माइटोसिस, मेटाफेज या जो भी स्टेज होगा। हाँ, तो यदि माइटोटिक सेल्स आर शोइंग द रेडियो एक्टिविटी, दैट मीन्स जब ये इम्पल्स, जब उसमें ये पल्स दिया गया रेडियो एक्टिव, तो दे वर इन द एस फेज। यदि वो एस फेज में नहीं होते तो रेडियो एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और सेकंड क्या है, तुम लोग को इसमें बना नहीं, इसमें हमने हाथ से ड्रॉ किया है। द फर्स्ट माइटोटिक सेल अपियर्स आफ्टर 3 आवर्स। देखो शुरू में 0 0 है और 3 5 और उसके बीच में वो लाइन है। बाकी जो दो आंसर है वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इससे हम लोग कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते।